Hello students, on your demand I am again here with taking a very interesting topic of AP class 10th. Okay, first of all I want to say if you like my video then press the like button and subscribe my channel, and if you have any query, any doubt, you can comment in inbox. Okay, so I am going to start AP. AP is very important. Okay, so listen carefully what I am saying to you. First of all, what is AP? AP is a sequence in which every next value is a fixed value is added in every preceding value and you will get a sequence. Then it is called an AP. How will you find then given sequence is an AP or not? So first of all I want to tell you then AP is always in the form of AP is equals to A plus D, A plus 2D and so on. So student, what is this A? A is called first term, your first term of AP. And what is D? D 2D you are watching, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने D plus किया फिर 2D plus किया. It means always we are adding a fixed value D in preceding term. Okay, D is called common difference or you can say difference. Okay, take an example to make you more clear about AP. Suppose you learn lots of tables like 2, 3, 4 in your junior classes like 2, 4, 6, 8 and so on. This is an example of AP. How I can say that this sequence is an AP? Look, this is A is equals to 2, this is A2, this is A1, A2, A3 and A4. If the common difference between these terms is equal or constant, then you can say this series is a AP. ठीक है, is an AP. जैसे यहाँ देखिए A2 minus A1 is equals to 4 minus 2 is equals to 2. A3 minus A2. Always subtract next term from previous term. Sorry, previous term from next term. देखो ये A2 है, हमने subtract किया है A2 minus A1. Okay, you will get correct value when you take A2 minus A1. If you are taking A1 minus A2, you will get incorrect value. Okay, A2 minus A1 is equals to 4 minus 2, 2. This is 6 minus 4 is equals to 2. A4 minus A3 is equals to 8 minus 6. देखो ध्यान से हमारे तीनों वैल्यूज D की वैल्यू ऑलवेज वी आर गेटिंग इक्वल और कांस्टेंट 2 2 2 इन ऑल केसेस. ठीक है, दिस इज एन AP. सो यू कैन से योर AP is can be in the form of decimal values or fractional values or any real value. Take some other example. Root 2, 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2 and so on. This is also an example of AP because second minus first you will get root 2. 2 root 2 minus root 2 will equal to root 2. 3 root 2 minus 2 root 2 will equal to root 2. And 4 root 2 minus 3 root 2 is also equals to root 2. So here you can see that your value of D is always constant. So this sequence is an AP. Is it clear? On other example you can take like 1 by 2, 1, 3 by 2, 2 and so on. Here you can say then when we subtract 1 by 2 from 1, you will get 1 by 2. When you subtract 3 by 2, 1 from 3 by 2, you will also get 1 by 2. When you subtract 3 by 2 from 2, you will get 1 by 2. So your value of D is always constant. Okay. Other example you can take AP is equals to 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 and so on. Here you can see that when you subtract 0.5 from 1, you will get 0.5. When you subtract 1 from 1.5, you will get 0.5. Means जब भी आप
नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। इज इट क्लियर? अगर आपकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है इट मींस ये सीक्वेंस एक एपी है। ओके ओके, और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे? बेसिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक चीजें एपी से रिलेटेड। जो हमारी 5.1 मींस फर्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूंगी। ओके, सो मेक श्योर कि आप वीडियोस कंटिन्यूअसली एंड सीक्वेंस में देखें तो आपको एक एक क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनसीईआरटी आई विल गिव यू अ असाइनमेंट रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एपी। ओके, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं? आपको जब कभी ए की वैल्यू गिवन हो, कई बार आपको क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि आपको ए की वैल्यू गिवन होगी सपोज 0.5 एंड डी की वैल्यू दे रखी है आपको 2 एंड बोलेंगे आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स और 5 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो हाउ विल यू फाइंड? यू जस्ट नीड टू, देखो यहाँ अभी आपको बताया था ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इट मीन्स यू ऑलवेज एड योर d in your first term. The first term you will make, first term is given to you directly. A is your first term. Then how will you get second term? You just add d into your a. 2 and 0.5 will become 2.5. And now third term, again you will add your d. Third term will become 4.5. Then next term 6.5 and so on. How many terms they are asking? You can find out by adding d in your previous term, not first term, previous term means just add your d in this. You will get next, again add d, you will get next and again add d. Means आप अपनी फर्स्ट टर्म में d ऐड करेंगे, आपको a2 मिलेगा, a2 में आप d ऐड करेंगे, a2 में यहाँ पर a सिर्फ इसलिए दिखाया गया है क्योंकि सीक्वेंस इस फॉर्म में चलती है, बट आपको हमेशा अपनी प्रीवियस टर्म में d ऐड करना है तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएगी अपने एपी की। ओके, एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है इसमें कि चेक करने के लिए यू हैव टू फाइंड और यू हैव टू चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस और सीरीज इज एन एपी और नॉट। आप कैसे फाइंड करेंगे? सपोज मैंने आपको एक एपी दिया है, एक सपोज सीक्वेंस दी है, अगर हम पहले एपी लिख देंगे, पहले एपी नहीं लिखेंगे, पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। आपको सपोज दिया है 3 6 12 24 एंड सो ऑन, और पूछा है आपसे कि इज दिस सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। पूछा जा रहा है कि क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। कैसे निकालेंगे? वही सेम चीज, अगर आपकी डी की वैल्यू कांस्टेंट है तो ये एपी है, और अगर डी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है गिवन सीक्वेंस एपी नहीं है। ओके, हाउ विल यू फाइंड? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म फ्रॉम योर नेक्स्ट टर्म। आप यहाँ पर 3 - 6 नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? 6 - 3, क्या आ रहा है आपके पास? वैल्यू 3। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या है? 12। 12 से प्रीवियस टर्म क्या है? 6। नाउ 12 - 6 विल बिकम 6। देन नेक्स्ट टर्म क्या है? 24 एंड प्रीवियस टर्म इज 12, you will get 12 here. You can see that your value of d means difference, is not constant. Okay, आपको हर बार ये वैल्यू अलग अलग मिल रही है, सेम नहीं है। It means this sequence is not an AP. ये sequence AP नहीं है। Okay, take another example. Suppose आपको दिया है -1, -2, -3, -4 and so on, and you have to check whether given series is an AP or not। क्या करेंगे? वही नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। यहाँ हमारी वैल्यूज नेगेटिव हैं, मींस इंटीजर्स हैं, इसलिए आपको एक माइनस साइन बीच में लेना है और जो आपकी वैल्यू का साइन है वो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाया है मैंने बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग सब्ट्रैक्शन। ओके, एंड ये माइनस साइन आपकी गिवन वैल्यूज का अपना साइन है। ओके, -2 -1 it will become -2 + 1, मीन्स आपकी वैल्यू क्या आ रही है? -1। ओके, क्लियर? यहाँ देखो ध्यान से, -3 - -2 इज इक्वल्स टू -3 - प्लस के 2, you will get again -1. Now -4 -3 -4 - plus 3, you will again get -1. You can see
that in every time you will get same value of d. देखो आपकी d की वैल्यू डिफरेंस जो आपका नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जब आप कर रहे हैं तो आपकी d की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आ रही है. इट मींस गिवन सीक्वेंस आपका AP है. दिस इज एन AP. yes. Why? They will ask then why. You have to explain. You have to show by calculating this, calculating d, and write down at the last of your answer that we can see that the value of d is constant. That's why given series is an AP. Okay. If d की value constant नहीं है तो आप लिखेंगे because d is not constant. That's why this series is not a AP. And यहाँ पर आपकी d की value constant है. That's why this series is an AP. ओके. अगर अभी तक जितना हमने बेसिक ये तीनों चीजें, पहला आपको a और d की वैल्यू, अगर a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप सिर्फ d को a में पहले ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, उसमें अगेन d ऐड करेंगे, थर्ड टर्म आएगी, फिर d ऐड करेंगे, आपकी नेक्स्ट टर्म ऐसे आती चली जाएंगी. ओके. आपने जस्ट d ऐड करना है प्रीवियस टर्म में. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, आपको चेक करना है कि कोई AP है या नहीं, तो आपको नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है. अगर d की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, यस दिस इज एन AP. कांस्टेंट नहीं आ रही है, दिस इज नॉट एन AP. ओके. थर्ड चीज कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दी है और पूछा गया है A और D की वैल्यू दी गई है और AP की नेक्स्ट 4 या जो अपकमिंग उसकी 5 वैल्यूज हैं वो पूछी गई. 3 चीजें मैंने आपको क्लियर करी है. फर्स्ट, AP चेक करना कि वो AP है या नहीं, गिवन सीक्वेंस AP में है या नहीं है. दूसरा, अगर A और D की वैल्यू दी है तो AP की कमिंग वैल्यूज फाइंड करना. ओके. दीज आर द बेसिक्स ऑफ AP. अच्छा, एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगी. उसको हम बोलते हैं, जैसे हमारा कोई AP है. ओके. लुक एट हियर. सपोज यही हमने AP लिया, ये तो AP नहीं था हमारा. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज हमने लिया है 2, 4, 6, 8, 10. आप अभी देखो यहाँ ये डॉट्स, मैंने डॉट्स लगाए हैं. डॉट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इट मीन्स दिस AP हैज इनफाइनाइट टर्म्स. मीन्स ये AP कहीं एंड नहीं हो रहा है. जरूरी नहीं है कि आपका AP हमेशा टर्मिनेट हो या टर्मिनेट ना हो, ये भी जरूरी नहीं है. मीन्स हम AP को ऐसे भी ले सकते हैं 2, 4, 6, 8. बस हमारे AP में कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स. तो यहाँ पर n क्या होगा? n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स. इस AP की नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 4. दिख रही है ना आपको? क्योंकि मैंने इसके आगे डैश नहीं लगाया है, इसके आगे डॉट नहीं लगाए हैं. इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग AP. मीन्स दिस AP हैज ओनली 4 वैल्यूज. बट इन दिस AP, यहाँ जो AP लिया है मैंने, ये वाला, इसमें मैंने कितनी वैल्यूज ली हैं? 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 डैश. इट मीन्स वी डोंट नो हाउ मेनी टर्म्स दिस AP हैज. इट मीन्स दिस AP हैज इनफाइनाइट टर्म्स. This AP has constant terms. Okay. This is also it's a type of AP. आपको बस ये ध्यान रखना है कि n क्या इंडिकेट कर रहा है. ठीक है. आपका n means number of terms. आपको कल हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. वैसे आपको इस वीडियो के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको सेंड करूंगी दैट इज रिलेटेड विद 5.1 in which I will tell you how will you find AP, how will you check whether the given series is an AP or not, and maybe कुछ और आपको उसमें क्वेश्चन इस टाइप से आए. हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. ओके स्टूडेंट्स,